Hey, hi. Hello, Good hello, hello. morning. Good morning, good morning. How are you? I'm good. How are you? Fine, fine, just fine. I'm on to the question. I will first ask you a general question and then we'll get into Liverpool and Atletico Madrid. Is it all right? Done. That's perfect. So, so आपको कैसे लगा था कि चैनल शुरू करना चाहिए and what all are the like problems that you faced during this period of starting your channel? Because like women commenting on football is not really a mainstream thing in India because a lot of critics get जब ऑफेंड हो जाते हैं कि एक लड़की कैसे कर सकती है इस सब पर कमेंट सो आपने उसे टैकल कैसे किया और आपका चैनल शुरू कैसे किया All right. So I wanted to start YouTube का चैनल ऑन फुटबॉल काफी टाइम से. तो मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं शुरू करूँ. टू बी स्पेसिफिक 2 साल पहले से मन था मेरा. बट आई जस्ट डिड नॉट हैव दैट इन मी उस टाइम पे. वो गट्स बोलते हैं ना, उस टाइम पे थे नहीं मेरे पास. मेरा नहीं हो पाएगा यार. इट्स बेटर कि थोड़ा मैं ना अपने आप को थोड़ा एक्सपोजर देती हूँ कि कैमरा पे बात कैसे करना है. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस अगर हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं रिलेटेड टू फुटबॉल एंड जब हम कैमरा पे वीडियो बनाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब मैंने शुरू किया ना, पहले मैंने टू इयर्स पहले पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट आई डिडंट हैव इट इन मी टू अपलोड इट. And I remember, like, when I was recording the video, I realized that there are so many points that you miss when you have to talk in front of the camera and there is no person that you are talking to. So it was quite difficult for me. But then I think 6-7 months back, I thought that this is the perfect time for me and not really care what people think about it. Obviously there were so many comments by people, but people will make comments, right? You can't stop yourself from going ahead and doing whatever you love, because even if you're doing everything perfectly, because I remember I made sure that I do not give some opinion that goes against or hurts anybody. So I was very positive sort of a person on my channel. I used to praise everybody, every footballer, every manager, because I thought it might not be perceived correctly. But then I realized this is not the way to go, because whatever I feel about the game, I'm not saying I know everything about it. I'm learning every day. Obviously everybody have their opinion, so I'm just going ahead with it the way it is. But then I must say this, that even though yes, there have been a lot of sexist remarks by people, but there are so many men who have like given me such good feedback on the content that I'm making. So obviously we look at the darker side, but there is a positive side as well. And there are so many men, I must say men, that have been so nice, so respectful to me, even if I make some mistake or error or anything. So they correct me nicely. So I understand that. So I think it has been a very good journey as of now. So yeah, that is what has kept me going. So they text me on Insta, they text me, sometimes they comment, they give such good comments, and it's just so good to know that there are genuine people who appreciate what you are doing. So that is what keeps you going always. So you are the only the football discusser I know who is woman in Indian community of football, and hope you grow exponentially well, and hope you are the first YouTuber of Indian football community to get 1 lakh subscribers. Thank you so much, really means a lot, and likewise I hope that same thing happens with you as well. Thank you. So getting on to the Liverpool and Atletico match, so we'll break the norm. We'll start with the prediction. Who do you think will win? Apart from being a Liverpool fan. Okay. I think that Atletico is going to win the match, because we have a lot of injury concern in our midfield, but we'll discuss about it later. But since you asked just the prediction, so I think that it's Atletico that is going to win the match. So what do you think of the match against Brighton? Because Liverpool were bit shaky. Things were not going right. Brighton were like outplaying them in some aspect. They were clearly a better team. Yeah, they were clearly a better team. And I thought Brighton would win, but Destiny had some other plans. See, I'll tell you okay, this might be something that is not exactly correct, but मैंने एक चीज नोटिस किया लिवरपूल के मैचेस के बारे में. जब भी तुम उनको कुछ इजी दे दो कि ये तो चलो गिवन ही है that you're going to win this one, right? एनफील्ड में है, पूरा क्राउड तुम्हारे साथ है, एंड अ टीम जो कि मतलब जिसके अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं that you will win. It's never going to be easy for Liverpool then. I have seen that, I have felt that in every match. कभी नहीं easy होएगा.
यू टेल देम कि बार्सा के अगेंस्ट मैच है, तुम 3-0 डाउन हो फर्स्ट लेग में कैंप नो में, अगला एनफील्ड में है, इज देयर अ वे? नो नो नो, देयर इज नो वे। तो हम ऐसे ही मजे के लिए मैच देखेंगे, जीत तो सकते नहीं है बार्सा के अगेंस्ट एनफील्ड पे, एम ही देखेंगे मजे के लिए, साला नहीं है, फर्मीनो नहीं है, यू नो व्हाट विल हैपन इन दैट मैच, तब करके दिखाएंगे। देन देयर इज दैट बिलीवर्स वाला थिंग कि सी वी डिड इट। सो दैट इज व्हाई against Brighton I was not even angry because they played so well and this is what is expected now। तो अभी तक मैं used to हो गई हूँ from whatever happened, but let's also say that Brighton played a very good game। we had a lot of problems in our midfield, तो वो link up बन ही नहीं पा रहा था, तो ना हम create कर पा रहे थे ना हम defend कर पा रहे थे, तो 2 गोल का lead हमने blow करा, but we have been doing that in every match I feel। even Atletico के against उनके होम ग्राउंड पे हमने लीड गवाया था, देन AC मिलान के अगेंस्ट ऑल्सो हमारा लीड था, तो लीड तो हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है, देन मिडफील्ड प्रॉब्लम्स हमारी क्लियरली हैं ही। तो ऑब्वियसली दे कंट्रोल द गेम वेरी वेल, दे प्ले अ प्रॉपर फुटबॉल ब्राइटन, आई मेंशन दैट, एंड दे आर लाइक so good when it comes to the attacking perspective of football and also in the possession wise, so I think they control the game very well। मैं मिडफील्ड प्रॉब्लम की तरफ ही आने वाला था, जस्ट टू डिस्कस दैट आई थिंक लिवरपूल आर लैकिंग दैट क्रिएटिव मिडफील्डर्स माइंडसेट, यू नो दैट टच ऑफ मैजिक दैट थियागो गिव्स यू। नो disrespect to Jordan Henderson and Curtis Jones and Keita as well, but Thiago has some magic in it and Thiago ऐसा कोई खेल नहीं पा रहा। मतलब अगले सीजन भी देखोगे ना तो आप बोलोगे थियागो का सीजन अच्छा नहीं गया था, पहला सीजन था, आप वैसे मतलब बोलोगे कुछ, you would criticize him, क्रिटिसाइज करना बनता भी था, बट द passes he would make would certainly be a goal decider। They will lead to something। वो ऐसी passes नहीं थे कि बस एमी करने को कर दिया that he's in the midfield। Sometimes that was a criticism with Gini Wijnaldum that he's just there, a figure who's perfectly fit and will be available throughout the year for you, but कुछ निकल के नहीं आएगा उन passes से। तो थियागो और सब में difference, I think that is what the main difference is कि वो that will lead to something। So overall yeah, pass, yes, so overall pass season में भी लिवरपूल का कंसर्न डिफेंस था। मतलब आप वो सीजन भी देखोगे, कौन सा सीजन था वो, आई फॉरगॉट, वेयर लिवरपूल जस्ट स्लेप्ट, जहाँ पर डेम्बा बा ने गोल मार दिया था, जेरार्ड स्लेप्ट, वो वाला। मतलब मींस वहाँ पर भी मतलब लिवरपूल का प्रॉब्लम ये है कि उनकी डिफेंस शेकी रहती है। मतलब ये मतलब इन द कपल ऑफ इयर्स इट हैज बीन लाइक ब्राइट, मतलब अच्छी रही है। अब वैन डाइक के आने के बाद टू मेंशन वैन डाइक, एलिसन, या सो मतलब शेकी रहती है, इसीलिए उन्होंने 20 इयर्स में कुछ टाइटल नहीं जीत पाए थे एंड लीग नहीं जीत पाए थे, मतलब बेसिकली लीग नहीं जीत पाए थे उन लोग। सो व्हाट डू यू थिंक, या फिर ये ओनर्स की गलती है कि दे आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन द स्क्वाड दे हैव राइट नाउ, बिकॉज कुछ प्लेयर्स अगर इंजर्ड भी हो जाते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर देम, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है वो भी शायद से इंजर्ड ही हो जाते हैं या फिर वो आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी आई थिंक दैट ओनर्स का तो ऐसा है कि दे हैव मेड इट क्लियर द काइंड ऑफ लाइक, वो लिवरपूल से एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जो तुम प्लेयर्स को सेल करोगे उससे जो मनी आएगा यू कैन बाय प्लेयर्स, लेकिन वो लिवरपूल से कोई पैसा नहीं लेंगे ओनर्स का, वो पहले से ही क्लियर था कि वो क्लब का कोई पैसा खा नहीं रहे हैं। तो एफएसजी का स्टार्टिंग से ये चीज क्लियर था, एंड वी ऑल नो एंड क्लॉप न्यू व्हाइल गेटिंग इनटू द जॉब दैट व्हाट इज डिमांडेड ऑफ हिम। तो ये तो नहीं है कि अभी सडनली यू नो वो पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया है एफएसजी जब से 2011 से, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। पर अगर हम बोले तो कुटिन्यो लेफ्ट एंड फिर हमने वैन डाइक, हमने एलिसन लिया, वैन डाइक लिया, क्लियरली 2018-19 का सीजन था एंड हमारा डिफेंसिवली द बेस्ट सीजन एवर जो हो सकता था वो। तो ये तो क्लियर है कि तुम टाइटल्स अगर जीतते हो तो अपने डिफेंस से जीतते हो, जितने मर्जी गोल्स कर लो आगे, डजंट मैटर। एंड यस डिफेंसिवली वी हैव बीन अ लिटिल शेकी, आई विल अग्री टू दैट, बट अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास पिछले सीजन में डिफेंसिवली सेंटर बैक्स इंजरीज जो रही इतने सारा कि हमने अपने जो सेंटर हमारे मिडफील्डर्स हैं उनको यूज किया, फबिन्यो, हेंडरसन, दे वर इन द सेंटर बैक्स, दे वर यूज्ड एज सेंटर बैक्स, बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज एंड क्लॉप एडमिटेड दैट हमारे पास ऑलरेडी 2 सेंटर बैक्स थे, रीस विलियम्स एंड नैट फिलिप्स, जो हमने एकदम लास्ट में रियलाइज किया व्हेन वी हैड नो ऑप्शन, जब ओजान कबाक वो भी लेकर आया और वो भी इंजर हो गया। आई रिमेंबर इट वाज न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल का मैच, तो हमारे सेंटर बैक्स उस मैच, आई थिंक वो 6th मैच था, और हमारे सेंटर बैक्स थे फबिन्यो एंड ओजान कबाक, दे वर आवर सेंटर बैक्स। ओजान कबाक इंजर हो गया एंड वो वाला मैच 1-1 ड्रॉ हुआ था। तो जो लास्ट 5 मैचेस थे पिछले सीजन के प्रीमियर लीग के, उसमें हमारे सेंटर बैक्स, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच था,
see the record when they came, they are the center backs, they play as center backs, and when we use them as center backs, I think it was play. So that's what Klopp said, that we went out looking for Ben Davies and Ozan Kabak, but we had the centre backs there, and I think they did pretty well. So I will call them the cult heroes because come on, they saved us when it was really needed. But now talking about Van Dijk is back, there is Konate, there is Matip, there is Joe Gomez. We know we have a lot of centre backs, but I don't think that defending depends on only them. In Klopp's play, everybody has to defend. Everybody is a unit, they are a team. So you see, we have so many options we have so many injuries in our midfield. तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पाता है, हम हाई लाइन खिलाते हैं, तो इतना हाई जब जाते हैं, हमने एटलेटिको के अगेंस्ट भी यही देखा, ग्रीजमान को कितना स्पेस मिला, हम हाई लाइन खिला रहे थे, वैन डाइक एंड जो भी हमारे डिफेंडर्स सेंटर बैक्स है वो आगे होंगे इतना हाई लाइन में, तो उनको एकदम क्लियर कट वो जगह मिल जाता है, बिकॉज मिडफील्ड में हम वो जो उनके पासेस हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं. तो अभी जो मैं बोलूंगी, अगर थोड़ा शेकीनेस आ रहा है तो हमारे मिडफील्ड की वजह से भी आ रहा है डिफेंसिव यूनिट में. तो हमारे पास जो वो डिफेंसिव सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर जो हमारा फर्बिन्यो है, ही इज इंजर्ड एज वेल नाउ. तो व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल तो हम देखते हैं कि वो शेकीनेस आता है. ओनर्स का गलती है, आई मीन यू कैन नॉट लाइक पॉइंट समथिंग आउट, जब जो है वो है. तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि ओनर्स की वजह से नहीं जीत पाते. वी वन द प्रीमियर लीग, वी वन द चैंपियंस लीग, एंड आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी वेल फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ इयर्स. हम 1 पॉइंट से रह गए थे प्रीमियर लीग का ट्रॉफी जीतने के लिए, द टाइम व्हेन वी वर सो गुड डिफेंसिवली. हम उससे पहले चैंपियंस लीग के फाइनल में थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. सो या ऑब्वियसली शेकीनेस है, वो आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट डजंट मीन कि just because the owners या फिर the philosophy of the manager or something like that, that is to be blamed here. It's just that हमारे पास consistently players नहीं रुक पा रहे हैं to play a lot of matches together. तो Gini Wijnaldum था हमारे midfield में and he's gone and we didn't have a replacement. And Harvey Elliott was supposed to be that replacement for us, but then injury वो भी हो गया. So that is why I feel कि हाँ obviously midfield defensively problem है, but कर रहे हैं, शायद कर लेंगे. That is what is happening right now. Konate साइन किया and Manchester United के साथ बहुत अच्छा था. Last match में everybody was off against Brighton like you mentioned. So coming on to Atletico Madrid. So Atletico Madrid का फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है. They lost against Alaves, मतलब फिर बाद में मिलान के सामने एक नैरो विन, बाद में फिर वापस बार्सा के सामने 2-0 जीतना, फिर लिवरपूल से हारना, फिर उसके बाद रियल सोसिएडेड के सामने ड्रॉ करना. तो ऊपर नीचे चल रहा है. There is a graph of like hill. They are going up, they are going downwards. But the thing is, Simeone is not able to like find his best squad. He's just rotating the players, but he's not able to find the best squad. What do you think? Because Barca, इसके मतलब Liverpool और Atletico Madrid in recent years, like it's a big game. You know it's a big game. और इसने बहुत हवा पकड़ी है in recent years. Exactly. So what? I remember the last match जो था. हाँ. Yeah. What is the question? No, you go on after Mazhab. Yeah, so I was saying जो लास्ट मैच था जब वो एनफील्ड पे आए थे एटलेटिको मैड्रिड 11th मार्च, और उस टाइम पे पूरा कोरोना वायरस और वो वाला पूरा सिचुएशन चल रहा था, एंड मैड्रिड में कोरोना वायरस वाज एट इट्स पीक. तो बहुत सारा उस पे भी मतलब बहुत कुछ चल रहा था कि उस टाइम पे वो वाला सिचुएशन था जब एटलेटिको मैड्रिड आया था वहां पे खेलने के लिए, एंड वी वर नॉक्ड आउट. लाइक हुआ ही नहीं कि हम उसके बाद तो खेल ही नहीं पाए, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया एंड there was no Champions League for us. But अगर एटलेटिको एंड लिवरपूल का हम बात करें तो अलग ही तरह का राइवलरी फॉर्म होने लग गया है recent times में, like you said. तो मे बी सिमियोनी एंड क्लॉप के बीच में जो चल रहा है, हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, क्या इनका अलग ही छोटी सी चीज का इनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ कर लो यार और खत्म करो बात को, पर नहीं, बस वो इशू बनाना है और वो चलता है. तो कुछ भी लगा लो, तो हर चीज ना वो बिल्डअप होती रहती है. अभी तो सुआरेज है एटलेटिको मैड्रिड में, तो एक नया फैक्टर और मिल गया इस चीज को और बिल्डअप करने के लिए. सो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड मतलब तुम क्या कुछ भी छोटी चीज होती है ना, एक बड़ी चीज बनी जाती है व्हेन इट कम्स टू अ फिक्सचर लाइक दिस. एंड लाइक यू सेड दैट एटलेटिको मैड्रिड का कौन सा प्लेइंग 11 जो है वो रोटेट कर रहा है सिमियोने. I understand and I agree. Since see, I don't see a lot of Atletico Madrid के matches in La Liga. I don't see them a lot, but you do. So I absolutely agree with you, because when I was trying to find out who are the strongest playing 11 for Simeone, and I was confused. Okay, so this person is playing well in this match. So means seriously, there is that confusion because there are so many good players. He has a very good squad, I must say, very good squad. So it's very difficult to like pick
क्या कौन सा मिडफील्डर हो सकता है? रॉड्रिगो डी पॉल ले लो, उसको बिठाओगे, कितना सही मिडफील्डर, कितना सही प्लेयर है वो। किसको मतलब कोके है वहां पे तुम्हारे लिए। देन योरेंटे, वो लिवरपूल के लिए तो मतलब लिवरपूल में एनफील्ड में आके तो ही शाइंड कंप्लीटली। तो आई डोंट नो हाउ इज ही डूइंग इन ला लीगा, बट लिवरपूल के अगेंस्ट तो ही वाज डैम गुड, योरेंटे। एंड देन वही है, इतने सारे प्लेयर्स हैं उनके पास टू चूज फ्रॉम। तो even I don't know who is their strongest playing 11. I think maybe that is what is the problem, कि उनको गेम टाइम टुगेदर साथ में ज्यादा मिल नहीं पा रहा है। कि होता है ना जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, when they are on the field, तो there is no way the other team can win the match. But that thing is not happening with Atletico Madrid at all. कि कौन है उनके वो strongest playing 11 अभी के लिए, so no idea. क्योंकि जोआ फिलिक्स बहुत अच्छे फॉर्म में था, उसको बिठा दिया था, मतलब अभी सिमियोने इंडिया मैच। फिर उसके बाद ग्रीजमान जो बारसा को लूट के एटलेटिको मैड्रिड में प्राइम ग्रीजमान बन गया है भाई, क्या ही बोलना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे गोल मार रहा है जो बारसा में सिटर्स हकता था। Yeah. It just did not gel well with Barcelona, right? I mean, there was a lot of expectation from Griezmann to Barcelona, and same thing with Coutinho. Like Coutinho क्या form में था लिवरपूल में, and then did not work in Barcelona. Why do you think that players are not working in Barcelona after they come to Barcelona? What is the problem there? No. The thing is, Coutinho's signing was rushed by Bartomeu. No, Ernesto Valverde didn't wanted Coutinho. बट क्योंकि हमारे पास इनिएस्टा चले गया था, तो बार्टोमेउ को लगा था कि अभी उसका एक रिप्लेसमेंट चाहिए, हमें पैसा डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट हमारा रिप्लेसमेंट वाज इन ला मासिया, यू सी रिकी पुइज, यू सी नाउ गावी, मतलब ऐसे यंग प्लेयर्स बहुत से रिप्लेसमेंट ला मासिया में था। बट बार्टोमेउ ने कुटिन्यो को ले लिया, और कुटिन्यो फर्स्ट 10 गेम्स ही वाज प्लेइंग लाइक ही वाज प्लेइंग एट लिवरपूल, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, उसका कुछ ये नहीं था। बट द मोमेंट वेलवर्दे स्विच्ड हिम टू द लेफ्ट विंग, इट गॉट वर्स, क्योंकि कुटिन्यो का जो पूरा गेम है वो मिडफील्ड में, बॉल उसके तक पहुंचना चाहिए, मतलब टेम्पो, द टेम्पो ऑफ द गेम ही विल कंट्रोल, एवरीथिंग शुड गो थ्रू हिम लाइक मेसी, और मेसी तो था ही मतलब स्क्वाड में, सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर कुटिन्यो टू शाइन इन दैट वे। Very impulsive buy था Coutinho for Barcelona, but then it worked clearly so good for us. And same for Griezmann, and same goes for Griezmann, क्योंकि Griezmann भी एक स्टार साइनिंग थी, मतलब कुछ ऐसा ये नहीं था कि टैक्टिकली अच्छा, मतलब टैक्टिकल प्रोफाइल के लिए लिया था। Griezmann को निकलना था एटलेटिको मैड्रिड से, and so we signed him, cashing in 120 million. And from starting we knew it would not work out. So Griezmann would occupy the same spaces as Messi, but would not be as effective as Messi in the team. Exactly. So that is why I feel, you know, Griezmann did not really work in Barcelona, and अभी एटलेटिको में आके फिर से वो प्राइम लोकेशन उसको मिल जाता है, and you know he can like he gets a lot of space, and वही है, तभी वहाँ पे काफी अच्छे goals we are seeing from him. And against Liverpool, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल जो लास्ट लेग था, it was like very difficult to control him. वो रेड कार्ड हो गया उस टाइम पे, but very difficult. Seriously, he was so dangerous whenever he was on ball. Call it dribbling, कहीं पे भी बॉल आएगा, it will be a goal. He was that good against Liverpool. And the thing was, Barcelona में तब situation भी अलग थी, मतलब you had that Shetkari, we call it farmer, we call it Shetkari. Kike Setien was there, and he was not able to utilize the players properly, as well as Ernesto Valverde. Training की तो बजा ही दी ये लोग ने. They used to train only 2 to 3 hours a day, whereas to take Liverpool who train 6 to 7 hours a day, there is Man City. यहाँ पर Aguero पोल खोल रहा है, 8-8 घंटा Man City में ट्रेनिंग करते थे। Yeah, exactly. और मतलब वही चीज है ना, it's like more of the game. अभी ना क्लॉप ने एक इंटरव्यू में बोला था, the thing is that अभी क्या हो रहा है ना, इतने मैचेस हो रहे हैं, जो वो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो इमेजिन जहाँ पे ट्रेनिंग हो ही 2-3 घंटे का रहा है, उनको तो कितना ही टाइम मिलता होगा ट्रेन करने के लिए। तो ट्रेनिंग पे इज एक्चुअली द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर। अगर वो ही नहीं मिलेगा तो फिर गेम में क्या करेंगे वो? लास्ट क्वेश्चन नितिका, एंड विल एंड हियर। ओके, सो कौन होगा मैन ऑफ द मैच? हु डू यू थिंक विल बी द मैन ऑफ द मैच? I really want to say somebody from Liverpool क्योंकि and will be a match, and obviously I would love it अगर हम जीते, but let's not kid ourselves here. The kind of options in midfield that Atletico has and Liverpool does not have an option in midfield. तो जो हमारे पास जो बचा है कि चलो ये फिट है अभी, ठीक है, चलो तो ठीक है ना, अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तो तुमको ले लेते हैं अभी के लिए,
दिस इज अ सिचुएशन क्लियरली। तो ऐसा हो गया कि टाइलर मॉर्टन आर यूथ अकेडमी प्लेयर, तो वो तक हमारे सब्स्टिट्यूट्स में है। एंड इमेजिन वो बेचारा बहुत लाइक फिजिकली आई वोंट से कि काफी बिल्ड है, तो अगर वो एटलेटिको के अगेंस्ट हम उसको खिलाए, अगर एक भी इंजरी हो गया मिडफील्ड में, पॉसिबल नहीं है। कितना फिजिकल गेम खेलता है एटलेटिको, कहाँ बचेगा वो उस मिडफील्ड में, क्या होएगा उसका, बेचारा इतने इनएक्सपीरियंस प्लेयर। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू से समबडी फ्रॉम लिवरपूल कि जो होएगा कोई मैन ऑफ द मैच। आई वांट टू एनफील्ड में मैच, आई विश मो साला इज दैट प्लेयर और मे बी वैन डाइक like plays so damn well against them. But seriously, I feel it can be Felix, like the man of the match, Yeah. because he was so good Atletico Madrid के लिए last time also when we went to play there, and I think that it can be him. What about Luis Suarez? Uh, See, I wouldn't obviously want that to happen, you know, like, come on, Luis Suarez is so important for us also, you know, so I wouldn't want them to score at Anfield now. I would love it कि अगर वो गोल ना करे कि हाँ ठीक है यार, मतलब हम जीत जाए या फिर ड्रॉ हो जाए, I'll be happy, but मेरे को बस इंजरी नहीं चाहिए अपने प्लेयर्स का। लुइस सुआरेज का I wouldn't really want that. He played at Anfield with Barcelona and he was quiet. We kept him quiet there. And then Atletico के against वहाँ खेले, तो वहाँ पे भी मतलब he did not really get a chance for, जब already one man down थे, then Luis Suarez was on, and तो वहाँ पे भी चांस नहीं मिला। And I am sure that he would want to prove it, you know, अभी तो वो कर पाएगा, तो वो अलग ही फॉर्म में होने वाला है। तो that is why I just hope कि वैन डाइक एंड जो भी, आई थिंक मार्टिप होने वाला है, तो वो संभाल ले। So I would like, अगर फिलिक्स हो गया तो ठीक है, लेकिन सुआरेज का ना अगेंस्ट लिवरपूल थोड़ा थोड़ा अजीब हो जाएगा। So we'll end it here, and Alright. we'll end it on a good note that Liverpool draws or win. Hopefully. So thank you, Nitika, for coming. Thank you for accepting my request, and hope to do many more No, it was collabs with pleasure you. being here. Definitely, it was pleasure being here. Thank you for having me. Thank you.